Good morning, everyone. Welcome to your physics class. Today we are going to study some case study based questions, which is a new introduction in our CBSE class 12 physics pattern. This case study based question will be asked in 4 marks. There will be a case study on some topic related to our syllabus. This will be 2 questions. There will be 2 questions in section B. This will carry total of 8 marks, means 4 marks each. In one case study, you will be given 5 questions of 1 marks. You have to attempt only 4 from one case study. Alright. So there will be 2 case studies. You have to attempt 8 marks or 8 questions. So here I am giving you one example of one case study based questions that is related to Bohr atom model. Alright. So let's study this case study. According to Bohr atom model, in his atom model, Bohr postulated that electron can move only in those orbits for which the angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi. He derived that energy of an electron in nth orbit of hydrogen atom is given by En is equals to minus 13.6 upon n square, small n square electron volts. Here n is what? N is the principal quantum number. Alright. So when the electron jumps from higher orbit to lower orbit, energy is emitted which corresponds to a spectral line in the spectrum. तो ये सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं कि हाँ ये है, ऐसा कुछ भी बहुत कठिन नहीं रहेगा इस केस स्टडी में. All this will be related to your syllabus and this will be very easy to attempt all the 4 questions related to this case study. See, here some related questions are also given. First is the angular momentum of electron in 4th orbit. देखिए बहुत आसान है. एंगुलर मोमेंटम हम इसे 1 by 1 लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए इस केस स्टडी में क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ये एक पैराग्राफ दिया है आपको इसमें से क्वेश्चन निकाल कर लेना है. आपको केवल वो याद दिलाता है कि व्हाट इज द बोर एटम मॉडल. आपको कुछ बेसिक याद आ जाए, उसके बाद आपने तो पूरा पढ़ा है फिजिक्स. यू हैव टू अप्लाई ऑल दैट कॉन्सेप्ट. ऑलराइट. सो इस पैराग्राफ की आपको केवल इतनी जरूरत थी जो आपको रिमाइंड करा सके. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस डायरेक्टली. ऑलराइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमको पता है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ठीक है. तो पहला ये दे दिया उसने आपके केस स्टडी में जो आपके काम आएगा. ठीक है. दूसरा हमको दे दिया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस मच. ठीक है. तो ये 2 चीजें ही हमको अपने पास रखनी है, बाकी की हमको जरूरत नहीं है. तो मैं इन दोनों चीजों को अब यहां पे लिख देता हूं. पहला दिया था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल. मैंने कहा मान लीजिए कोई इंटीग्रल नंबर m है, इट इज h अपॉन 2 पाई. जहां n क्या है, इसका क्वांटम नंबर होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटम मॉडल. सेकंड दूसरी चीज क्या देखी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E n, इट इज इक्वल टू
the angular momentum of electron in fourth orbit. nth orbit के लिए angular momentum nh upon 2 pi. So fourth orbit के लिए n is equals to 4. So angular momentum will be equals to 4h upon 2 pi. So it will be 2h upon pi. सॉल्व करना है करके नहीं तो ऑप्शन में देखिए एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस लिखे हैं। स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इनके साथ ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, दिस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बट I have written only the question so that I can save some space of the board. So answer will be 2h upon pi. अगर आंसर वैल्यूज में दिया हुआ है, put the value of h, Planck's constant 6.626 into 10 power minus 34 joule second. Put the value, you will get the answer. Alright. Now next question. See, मैं थर्ड वाला देख रहा हूँ. Yes. The energy emitted when electron jumps from n equals to 3 to n equals to third वाला करना है. From n equals to 3 to n equals to 2. इस ट्रांजिशन में एनर्जी कितनी एमिट होगी? हमको ये सबसे लास्ट वाला ग्राफ अपनी केस स्टडी में बताया था कि एनर्जी एमिट होगी when the electron jumps from higher state to lower state. So the energy emitted, if I say it is delta E. So it is equals to energy for third orbit minus energy for second orbit. Put this value for third orbit, उसी एनर्जी वैल्यू में n equals to 3 रख दीजिए, minus 13.6 upon n square is equals to n equals to 3 रखना है, 9 minus ये ब्रैकेट में देखिए माइनस माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, इट इज सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा, तो ये माइनस 13.6 बाय 9 माइनस ऑफ, ये तो अलग माइनस कर रहा है, माइनस 13.6 बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर इक्वल्स टू, देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये बाय 9 है, सो इट विल बी स्मॉलर, ये क्वांटिटी बड़ी होगी, लेकिन बड़ी कैसे? माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के साथ बड़ी, यानी ओवरऑल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, ये लगभग आ रहा है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, आप चेक करिए 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया हमारा, फ्रॉम n इक्वल टू 3 to n इक्वल टू 2 डेल्टा ई आ गया, यही क्वेश्चन हमसे पूछा। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। क्यों सेकंड क्वेश्चन मैंने बाद में सॉल्व किया, ये अब आप देख लेंगे, काफी आसान हो जाएगा। दिस इज फॉर दिस ट्रांजिशन, ये इस ट्रांजिशन के लिए था। अब इसके बाद सेकंड वाला ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to ट्रांजिशन फॉर्म, यहां ट्रांजिशन फॉर्म होना चाहिए, ट्रांजिशन n equals to 3 to n equals to 2, ये होना चाहिए। सो सेकंड विल बी फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 2। हमको पता है फॉर्मूला डेल्टा E is equals to h mu, h multiplied by frequency, but frequency can be written as c by lambda, hc by lambda. So we can write lambda is equals to, for this transition, hc by delta E. आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 6.626 into 10 power minus 34 multiplied by c वैल्यू into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड में होती है, डिवाइडेड बाय डेल्टा E। डेल्टा E फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 2 ट्रांजिशन में एनर्जी वेरिएशन कितना हुआ, कितनी एनर्जी हमें मिली है, अभी हमने निकाला, रीजन टू टेक इट, व्हाट दिस वैल्यू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे क्या है, हमें इसमें एनर्जी निकालनी है, हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको जूल में नहीं कन्वर्ट किया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर देखिए ऊपर वाली वैल्यू लगभग
375, आप इसको सॉल्व कर ले, लगभग इतना ही आता है। नीचे क्या आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितने एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपनी वैल्यू जो ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रखा था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना ही ले लीजिए, ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 6547 एंगस्ट्रॉम के नाम, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर देते हैं, देखते हैं। सी हियर द वैल्यूज आर 6, डेल्टा E is in 6.626 multiplied by 3 and it is multiplied by 10 power 8 से 14 minus 26 divided by 1.89 multiplied by, one more thing, here it should be joules, electron volt में जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 से यहां पे डिवाइड हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 19, ये ऊपर वाला भी हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो जूल था उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं इसको। तो ये डेल्टा E हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और है, फोर्थ वाला, उसको भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ग्राउंड स्टेट के लिए वही, फॉर ग्राउंड स्टेट एन शुड बी 1, 0 नहीं होता, 1 होता है, ग्राउंड स्टेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, बस यहां वैल्यू कर दिया E0, ये सिंबल है ग्राउंड स्टेट का, इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 की जगह 1 रख दें इसका स्क्वायर, सो दिस विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। यानी इतनी एनर्जी आपको कम से कम और देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो दिस इज हाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड। सब कुछ दो फॉर्मूले पे बेस्ड था, और वो दो फॉर्मूला आपको किसमें दिया हुआ था, केस स्टडी में पहले से दिया हुआ था। अब हम नई केस स्टडी दूसरी देखेंगे, ऑलराइट। So here it is our second case study. Here it is based on optical fiber. According to case study, see on left side of the board, an important use of total internal reflection is made in transmitting audio and video signals through long distances. Each fiber consists of a core and cladding. कोर होता है और क्लैडिंग होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। व्हेन अ सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ द लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ suitable angle, it undergoes repeated total internal reflections and finally comes out at the other end. All right, so here the case study is giving you some introduction regarding optical fiber. As we have studied in our optics, total internal reflection is a refraction phenomena where the light travels from a denser medium to a rarer medium. It bends away from the normal. So if the angle is greater than the critical angle which is decided by the two refracting medias, all right, so if the critical angle, if the incidence angle is greater than the critical angle, then the refraction will be totally reflected, ray will be totally reflected and come to the previous media. यही हमने total internal reflection में पढ़ा था, all right, so let's solve it. Firstly, see the figure. Light signal transmitted to the core. यहां ये बाहर वाली cladding है, बीच में core. Cladding has refractive index N2
so that the ray always moves from denser medium to rarer medium. हम वहां पे देख पा रहे हैं. So let's come to the question. वहां पे बस आपको एक प्रीवियस रिवीजन के तौर पे बताया हुआ है. ठीक है, मेन आपको यहां पे फोकस करना है क्वेश्चंस पे. अगर उसमें कुछ डिटेलिंग दी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, कुछ क्वेश्चन इस केस से सॉल्व होते हैं. जैसे एक क्वेश्चन इसमें मैंने यहां नहीं लिखा है, वो क्वेश्चन ये था कि आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था कोर का. ठीक है, आपको बताना था क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 ऑप्शन में दिए थे. अगर मान लीजिए मैंने कहा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, so the cladding refractive index will be always smaller than 1.44, क्योंकि cladding कैसा होना चाहिए, rarer as compared to core. तो वो क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे. बाकी के ये 3 क्वेश्चंस हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, if the refractive index of cladding be taken as 1.44, cladding refractive index is given as 1.44, what will be the value of critical angle in core for TIR? क्लैडिंग कितना दिया हुआ है, 1.44 दिया हुआ है. तो कोर का देखिए यहां पे एक डेटा मिसिंग है. क्यों? क्योंकि हमें कोर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, बिना उसके सॉल्व नहीं हो सकता. तो उसको देख लेते हैं क्या था. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए यहां पे है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.68. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है. कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 एंड कोर दिया हुआ है 1.68. क्लैडिंग और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 और 1.68. तो कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा. तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें कुछ खास जरूरत नहीं है इसमें. देखिए कोर और क्लैडिंग के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन होता है वो स्लाइटली चेंज होता है. ठीक है, here N1 which is for core, N2 which is for cladding. N1 is given as 1.68, core is given as 1.44. So the value of refractive index of core is 1.68 and refractive index of cladding is 1.44. देखिए इस केस में जो वो क्रिटिकल एंगल होगा उसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू एन क्लैडिंग अपॉन एन कोर. ये फॉर्मूला होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस. सो पुट दिस वैल्यू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल सी, जो मिनिमम एंगल चाहिए TIR के लिए. सो 1.44 अपॉन 1.68, इट इज ऑलमोस्ट 0.8571. यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए ये वैल्यू आ गई, साइन सी इज इक्वल टू 1.44 अपॉन 1.68, it is equals to 0.8571. Here it is given that sine inverse of 0.8571 is equals to 59 degrees. So C will be equals to 59 degree. C is what? C is critical angle. ठीक है, C critical angle है. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन.
द वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व फॉर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. फॉर क्वेश्चन नंबर 2, the value of theta so that the light signal may be communicated to long distances. लाइट सिग्नल को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए, तभी ना आराम से TIR हो जाएगा. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल यानी 59 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. देखिए क्रिटिकल एंगल जो नापा जाता है वो यहां नापा जाता है, यहां, यानी इंसिडेंस एंगल जो नापा जाएगा, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल, तो वहां पे जो वैल्यू होगी इट शुड बी 90 माइनस 59. ठीक है ना, 90 माइनस C, किस एंगल से उसको हम भेजेंगे. तो यहां पे जो वैल्यू आएगी इसको अब हम निकाल लेते हैं. किस एंगल से इंसिडेंट करेंगे. देखिए फॉर इंसिडेंस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 59. तो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना है, तो थीटा हमेशा, देखो जब C 59 से बड़ा होगा तभी अच्छे से TIR होगा, थीटा इससे बड़ा होगा. तो अब जरा सोचिए कि यहां पे ये जो थीटा होना है, ये 90 माइनस 59 जब आप करिए तो कितना आता है, 31 आ रहा है. देखिए 31 डिग्री आ रहा है. As C should be greater than 59 degree. C 59 तो मिनिमम वैल्यू है, उससे बड़ा होगा, तो थीटा will be smaller than 31 डिग्री, और 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता. सो थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन देगा. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये C वाला. ठीक है, C वाला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वहां पे क्या है. देखिए इंसिडेंस एंगल की बात हो रही है, थीटा कितना होना चाहिए, इंसिडेंस किस एंगल से करे. ये थीटा क्लियरली नहीं लिखा है क्वेश्चन में, वो थीटा इंसिडेंस एंगल है. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस होना चाहिए, है ना. और क्रिटिकल एंगल देखिए हमेशा वो जो वहां पे नाप रहे हैं हम अपने फिगर में, ठीक है, वहां पे थीटा हम नॉर्मल से नाप रहे हैं, लेकिन ये मतलब क्रिटिकल एंगल हमारा इधर से नाप रहा है, लेकिन ये बचा वाला जो एंगल है दिस इज फॉर थीटा, तो 90 माइनस 59 यहां हो. तो जब ये 59 डिग्री से बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल हमेशा 31 डिग्री से छोटा होगा. बस वही चीज यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को पता रहना चाहिए. ये भी एक हमारी केस स्टडी का पार्ट ही है. ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो देखिए उसका डी ऑप्शन होगा, लाइट पाइप कहते हैं. क्या कहते हैं, लाइट पाइप कहते हैं. तो बच्चों देखिए केस स्टडी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं, बिकॉज दे विल गिव यू टोटल 8 मार्क्स. वहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी अगर आपने थोड़ा सा भी पेशेंस रखा और उस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व किया. तो आगे हम कुछ और देखें. अभी मैंने ऑप्टिकल फाइबर से लिया है एंड वी हैव सॉल्व इट फ्रॉम अनदर टॉपिक जो हमने पीछे अभी देखा था. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस तो हमारे हो गए बोर मॉडल का. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे. अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी केस स्टडी के कराएंगे अलग अलग चैप्टर्स से. तो उस केस स्टडी को समझिए. आपके क्वेश्चन में आधा कुछ आपके केस स्टडी में होता है एंड रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम योर बुक. आपके बुक का पार्ट आपके थ्योरी का पार्ट होना चाहिए, तो आप उसको पढ़ेंगे. ऑलराइट, चलिए, थैंक यू.